Good morning, my dear students. So we completed the first chapter in Hornbill and the portrait of a lady, and I hope all of you understood the chapter. You have completed your work, and hope everybody has sent me the homework. So now let's move on to our second thing, that is, now today I am going to take you a poem. So that is a photograph. So from the word itself you might understand what does the word mean. Photograph, the poem name is Photograph by Shirley Tolson. So please bear in mind, you should understand each and every line of the poem. You should know the name of the poem plus the poet's name, because in exams you can expect questions based on that. You may be 3-4 lines may be asked, and you may be asked which is the poem, who is the poet, etc. Okay. So just like the name suggests, it's revolve. The poem revolves around a photograph. Okay. So here let me just give you a short summary of the poem within 2-3 lines, because we have to go word by word, line by line. So still I will give you a small instruction about it. The poem is here. The poet, she is thinking about her mother, and in the photograph here a photograph is there of her mother's childhood. So you all might have gone for some picnic or for any leisure trip, maybe with your family or in the school. You cherish it, you love that memories, right? You might have gone with your father and mother to any historical places, any place in any beach like that, and you might be having the photograph of that. Just imagine a picnic you were when you were in a nursery class and you were just newborn baby, when you were 1 year, 2 years. Just imagine the dressing at that time. You may not be wearing the dress of your choice. Your parents may have given you some dress. So just see how funny your photos will be. You do one thing before starting your poem, no? Just now you are listening to the video. After this video, just ask your mother to show, just in your memory, take some photographs of the picnic you went a few years back. You can just imagine, just see how funny it will be. A laughter, a nostalgic feeling comes to your mind. Here in this poem also, nostalgia, that is a sweet memory of past, that is nostalgia, that comes to your mind. So let's see how our Shirley Tolson explains to it. Here little bit, what is the emotion, everything comes to here. Let's see here. The cardboard, that is here the photograph, the cardboard shows me how it was. Cardboard here means the photo is on a cardboard. The photograph, that is what is known as cardboard meant here. The cardboard means the photograph, and who all are there in the photograph? Let's see. The cardboard shows me how it was. So cardboard दिखा रहा है मुझे कि कैसा है वो. When the two girl cousins went paddling, the two girl cousins उस फोटो में है. Two girls cousins went paddling. तो दो गर्ल कजिन्स हैं. तो कोई बोल रहा है कि मेरा दो कजिन्स है. कौन बोल रहा है? देखो, went paddling. paddling मतलब वाटर में ऐसे खेलना, ऐसे स्लोली छोटा छोटा मूवमेंट के साथ पानी में खेलने को कहते हैं पैडलिंग. So two cousins were there in the photograph, moving in the, just walking in the water, समुद्र तट पे. Each one holding one of my mother's hands. So मेरे मदर के दोनों साइड में हाथ पकड़ते उनके दो cousins थे. तो इसमें फोटोग्राफ में कितने लोग हैं? 3. That is in between. It is my mother, and मदर के दोनों साइड में दो cousins उनका हाथ पकड़ के चल रहे थे. दोनों साइड में क्यों? Because my mother is the eldest. सबसे बड़ा मेरे मदर थे. Is it clear? So फोटोग्राफ में कौन कौन है? 3 लोग हैं. बीच में मेरे मदर है, दोनों साइड में उनके दो कजिन्स है. तीनों मस्ती कर रहे हैं. आपको मालूम है समुद्र तट पे, बीच का सर्फ बेस रहेगा तो we lost ourselves. बीच हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं. We just lost everything. Just forgets about the world. We just play in the water, right? And she the big girl. She means here my mother. She is the eldest of the, सबसे बड़ा वो है तीनों में. ठीक है. Some 12 years or so. तो मेरे मदर का उस फोटोग्राफ में उम्र कितना है? She is 12 years. Okay. All 3
three stood still to smile through their hair. और तीनों अपने बिखरा हुआ, देखो समुद्र तट बहुत अच्छा हवा चल रहे होंगे, बाल बिखरा हुआ था, उसके बीच उस बिखरे हुए बाल के बीच में एक सुंदर सा स्माइल देके बोल तीनों पोज कर रहे हैं कैमरा के लिए। कैमरा लेके कौन है? अंकल खड़ा है कैमरा लेके, ठीक है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और कैमरा लेके कौन है? मेरा अंकल उनका फोटोग्राफ ले रहा है। A sweet face, और मदर का, मेरे मदर का बड़ा प्यारा सा फेस है, स्वीट फेस है मेरे मदर के। My mother's that was before I was born. So sure है कि 12 साल की उम्र है तो मैं I was not born. Poet born नहीं है, poetess born नहीं है। And her mother's face was 12, मतलब 12 साल का है, बहुत स्वीट फेस था। And that was when I was not born. Okay. And the sea, all of you know, देखो those who have visited the sea, just you might, those who went there more than one time, you can see, पहले बार जो गया था, बाद में गया, आपको मालूम है सी में ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा, वही समुद्र तट, वही लहरें सब आ रहा होगा। बट यू कैन सी उधर आने वाला लोग, आप अगर जब when you are 5 years, आपका जो फीट इतना होगा पाँव, जब आप थोड़ा बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया तो आपका पाँव थोड़ा बड़ा हो गया, आपका बॉडी थोड़ा बड़ा हो गया होगा। बट द बॉडी, द ह्यूमन पीपल देयर, द ह्यूमन बीइंग्स गो देयर, दे चेंज, बट द नेचर और द सी नेवर चेंजेस। दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। माय मदर दैट वाज सॉरी एंड द सी which appears to have changed less। इसमें ये पॉइंट ये मेंशन करना चाहते हैं कि हमारा नेचर इट नेवर चेंजेस, समुद्र जैसा, इट इज सिंबॉलिक ऑफ द नेचर विच रेयरली चेंजेस, बट वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फेज। वो फील जो उनका जो है, वो एक दिन वो गया था, अगले दिन कोई और होगा। मतलब ह्यूमन बींग्स जो उधर जा रहे हैं वो चेंज होते ही जाते हैं, चेंज होते ही जाते हैं, बट सी दे डोंट, दैट डोंट चेंज। सी चेंज नहीं होता, बट उधर जाने वाला ह्यूमन बींग्स चेंज होते रहते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर यू। नो बट इसके बाद देखो ये फोटोग्राफ उस दिन का जो फंड हमें मिला था उससे भी ज़्यादा स्माइल और लाफ हमारे चेहरे पे आते हैं जब बाद में बहुत साल बाद उसी फोटो को हम देखते हैं और उसका जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग हमारे माइंड में आते हैं। सो वन सम 20-30 ईयर्स बाद के बाद, मतलब इस 12 साल की उम्र में जो फोटो लिया था उसके 20-30 साल बाद जब मेरे मम्मी वो फोटोग्राफ देखते तो उसमें इनोसेंट स्माइल उसके चेहरे पे आते। लेट्स सी, some 20-30 years later she laughed at the snapshot। इस फोटोग्राफ देखकर वो लाफ करते हैं। Why she is laughing? देखो लाइफ में I try to tell you student, this is the best time of your life, no worry, no tension। आप लोग बाद में कुछ years बाद you will be going for a job, you will be getting married or something like that, life totally changes। Now it's the best time of your life, live it in your own way, without tension, without worries। Same manner जब ये पोएट के मदर 12 साल के थे, she was not having any worry, no tension, एक टेंशन फ्री लाइफ था। तो उस फोटोग्राफ में उस इनोसेंट स्माइल और लाफ देखकर अभी 20-30 साल बाद हमारा पोएट उसको, सॉरी पोएट का मदर उसको देखकर she is laughing, she laughed at the snapshot। वो बोल रहे हैं she is telling see बेटी एंड डॉली। देखो इस फोटोग्राफ में बेटी और डॉली को देखो कितना फनी है। वो अपने कजिन्स के ड्रेस देकर बता रहे हैं कैसे ड्रेस करके आया समुद्र में जाने के लिए, समुद्र तट में जाने के लिए। सी हाउ फनी दे लुक्स, सी बेटी एंड डॉली शी से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह का ड्रेस दिया है, फनी ड्रेस, समुद्र में मतलब बीच में जाके खेलने के लिए। तो आपको मालूम है जब वो बात करते उसके 20 साल पहले का है, उसमें ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा। तो वो ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रेसिंग देखकर जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें ड्रेस दिया है उस दिन पहले के लिए सोच के वो हंसते हैं, ठीक है। शी थॉट लॉस्ट इन द मेमोरीज, वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी में चला जाता है हमारा पोएट। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। और आपको मालूम है when you remember after a few years about your school life or about the picnic or about the tour you have spent, और अपने फैमिली के साथ गया हुआ टूर के बारे में सोचेगा तो वो सब एक पास्ट है।
आपके बचपन में बीता हुआ हर एक गोल्डन मोमेंट्स आपके लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाला। दैट आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ वंस लाइफ। तो मेरे मम्मी के लिए उनका बीता हुआ बचपन उनके लिए यादों में है, वापस नहीं आएगा कभी भी। और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मेरा मम्मी का जो स्माइल था, वो इनोसेंट स्माइल ऑन फोटोग्राफ, वो भी अभी यादों में है, मेमोरीज में है, क्योंकि मेरा मदर भी अभी इस दुनिया में नहीं है। सो द सी हॉलीडे वाज अ पास, उनका पास है वो सी हॉलीडेज, एंड माइन इज अ लॉफ्टर, और उनका स्माइल मेरे लिए मेमोरी में है। बोथ राइट मतलब डिसअपॉइंटेड फीलिंग्स है, बोथ राइट with the labored ease of loss, labored ease of loss मतलब the poetess and the mother, they are sad about the fact that her mother's laughter is history, mother का laugh अभी वापस आने वाला नहीं है। her mother feels the same for her childhood, mother भी ये सोचे, देखो poetess का mother का smile जो वापस नहीं आने वाला क्योंकि उसका डेथ हो गया, और जो फोटोग्राफ देखकर उसका मदर अपने बचपन के बारे में बोल रहे हैं, वो भी कभी वापस नहीं आने वाला है। आपका बीता हुआ अच्छा मोमेंट्स जो बचपन में बीता हुआ वो कभी वापस नहीं आने वाला है। द वर्ड राइट हियर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, बोथ ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड ऑफ देयर लॉस, वो लोग दोनों अपना जो बीता हुआ अच्छा मोमेंट वापस नहीं आएगा सोच के डिसअपॉइंटेड है। दो चीजें हैं, पॉइंट के लिए अपना मदर का लाभ, और पॉइंट के मदर के लिए अपने बचपन में बीता गया वो गोल्डन मोमेंट्स वापस कभी जिंदगी में नहीं आएगा, मुझे वो लोग डिसअपॉइंटेड है। दे बोथ वर स्ट्रगलिंग, और इस लॉस को ओवरकम करने के वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राइंग टू एडजस्ट विद देयर लॉस, ये लॉस जो उनसे एडजस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। And both realized that the loss was final, ये loss final है, और they had to accept it, तो उनको accept करना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह का वर्ड यूज किया। labored is, labored मतलब बहुत मुश्किल से इस पल को ओवरकम करना पड़ रहा है। इस तरह का दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज किया हुआ एक लिटरेरी डिवाइस इधर है, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं उसको, labored और is, labored is very hard work, hard एंड ईज मतलब उसको ईज बनाना पड़ रहा है, तो ये ऑक्सीमोरॉन यूज किया। एंड नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, तो अभी मेरे मदर मुझे छोड़ के चला गया उतना साल हो गया जितना उस फोटोग्राफ में उस लड़की का उम्र था। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा उस लड़की का उम्र कितना था, कैन यू रिमेंबर? यस, इट वाज 12 इयर्स, 12 साल की उम्र थी उनके मदर का जब उस फोटोग्राफ लिया था, तो उतना साल हो गया मेरा मदर मुझे छोड़ के इस दुनिया से चला गया। क्लियर? एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस हालात में मैं बहुत सारा यादों में चले जा रहा है, बहुत सारा सोच मेरे माइंड में आ रहा है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कभी कभी है ना हमारे यादों में पुराने अच्छे यादें आते हैं, स्पेशली इट्स अबाउट व्हेन इट्स अबाउट आवर मदर, साइलेंस कवर्स अस, और इधर भी वो उस याद की वजह से, यादों की वजह से, अपने मदर का मेमोरीज की वजह से, शी इज हैविंग लैक ऑफ वर्ड्स, साइलेंस आ जाते हैं इसमें। एट द एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अभी मुझे और कुछ नहीं बोलना है, देयर इज साइलेंस, साइलेंस एवरीवेयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड द पोएम, एनी लाइन, एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज come out with it. Okay, now let me give you a few questions of this poem. First of all, the main thing is that try to learn the poet's name and the poem. Okay, the poem's name and the poet's name is very important. First question, just take out a pen or pencil and paper, be ready. What did the कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर, उस कार्डबोर्ड पिक्चर में किसका फोटो आया है, किसका पिक्चर फोटोग्राफ किया है? व्हाट डिड द कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर? Is it clear? Let me repeat it once again. What did the cardboard picture capture? Second question, what does the poetess mean by the lines their terribly transient feet? मैंने बता दिया था terribly transient feet का मीनिंग क्या है,
बीच पे गया, उसका फीट को टेरिबली ट्रांसिट मतलब चेंज हुआ फीट, क्यों बता रहे हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। बहुत साल होकर भी ना चेंज हुआ, किसी को सिंपलाइज करते हुए किसी के बारे में मेंशन है, उसको बताना लिखना है। एंड डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, इसे आपको कोई सजेस्ट किया गया इसमें से। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, वो किसका सिंबॉलिक है उसका एक्सप्लेन करना है आपको। सो थर्ड क्वेश्चन रिपीट वंस अगेन, what has not changed over the years and does this suggest something to you? And now let me give you the last question. What is the meaning of the line? What is the meaning of the line? Both ride with the labored ease of loss. Both ride with the labored ease of loss. इससे पोएट क्या बोलना चाहते हैं या पोएटस क्या बोलना चाहते हैं आपसे। सो ज़्यादा क्वेश्चन से क्या आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, ओनली दिस 4 simple questions. Give the answer, send to me positively before 1 o'clock tomorrow. Don't wait for tomorrow, do it today itself. But still, I'm giving you one more day. Do it before 1 p.m. tomorrow. There are many students here, those who did not send me the first day's homework. So please be very serious. We'll be taking your attendance, and your attendance, I already told you, will be based upon the homework you sent. That shows you have attended the class. Now have a wonderful day. Thank you.